Assalamu alaikum students. I'm your teacher Muhammad Nurul from FSX Senior Campus. I welcome you all in computer science tutorials. It's week number 7 and lecture number 1. So let's start with the contents of today's lecture. In this lecture, basically we are going to discuss about the programming environment. First topic is programming environment of C language. Okay, we are going to start the C language now from this task to the chapter number 5 until chapter number 5. Okay, we will discuss C language. After that, we will be discussing programming basics. In basics of programming, we will discuss language character set, result words, and header files, structure of a C program. Okay, these are some of the topics that we are going to discuss. So let's start with the first topic, which is programming environment of a C language. C language environment consists of following modules. बेटा C language का environment में क्या क्या चीज़ें होती हैं ये हम डिस्कस करते हैं one by one. In previous lecture we have already discussed about IDE Integrated Development Environment. Okay, इसमें हमने पढ़ा था क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होती है. बेटा एक्चुअली C language also use IDE, तो इसके अंदर भी वही चीज़ें होंगी जो हमने IDE के अंदर पढ़ा था. तो उसको हम देख लेते हैं. बेटा सबसे पहले क्या है, टेक्स्ट एडिटर, उसके बाद है कंपाइलर, नेक्स्ट वी हैव लिंकर, आफ्टर दैट लोडर, एंड इन द लास्ट debugger. These are 5 modules which are integrated in the C environment. First of all, text editor. It is a simple word processor that is used to create and edit source code of a program. Okay, it is a simple software that is used to create and edit the C programs. So let's see the environment. Okay, इसके environment हम देख लेते हैं थोड़ा सा किस टाइप का होता है, वो आपको दिखा देता हूँ मैं अभी. इसका एनवायरनमेंट, ये आपका एनवायरनमेंट है, ठीक है बेटा. ये मैंने एक छोटा सा लिखा हुआ है, सी कोड लिखा हुआ है सिंपल सा. ओके, विदाउट एनी आउटपुट. ये आउटपुट नहीं देगा आपको, एक्चुअली इसमें एरर आएंगी. तो फिलहाल मैंने वैसे लिखा ही आपके लिए. तो इसमें आप देखें कि आपके पास सबसे ऊपर क्या है, फाइल है. ठीक है, सबसे ऊपर आपके पास जो टैब आ गई. तो आप देखिए इसमें डिफरेंट टैब्स हैं बेटा, इसको मैं बताऊंगा आपको बाद में कि कैसे इसका यूज़ करना है. फिलहाल आप देखिए इसका ये इन्वायरमेंट है सी लैंग्वेज का. सो नाउ अगेन कम टू द लेक्चर. So text editor, but files created by text editor are plain text files. Okay? The files which we create with the help of text editor are plain text files. Most of the editors automatically highlight errors to simplify removing them. Okay? कुछ एडिटर्स ऐसे होते हैं जिसमें एरर्स को ऑटोमेटिकली हाईलाइट कर दिया जाता है कि आपकी ये वाली मिस्टेक है, इसको ठीक करें, उसको हाईलाइट कर दिया जाता है. Next we have compiler. Compiler is a software that translates C program C into machine language. Okay, it means कि compiler क्या करता है कि आपका जो high level language प्रोग्राम होता है, high level language here I am talking about C language. Okay, high level language कोड को कन्वर्ट करता है मशीन कोड में. Okay, दिस इज द वर्क ऑफ कंपाइलर, जिसको हम कहते हैं, जो बेटा सी का जो कोड होता है उसी को हम कहते हैं सोर्स कोड. ठीक है, जो हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम होता है उसको हम कहते हैं सोर्स कोड. और बेटा मशीन लैंग्वेज में जो आपका कोड होता है उसको हम कहते हैं मशीन सॉरी ऑब्जेक्ट कोड. ठीक है, सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड. जो हाई लेवल लैंग्वेज का जो है कोड है उसको हम कहते हैं सोर्स कोड. जो कन्वर्टेड कोड होता है उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड. Okay, it also detects errors in the source program and gives hints to the programmer. ये बेटा आप कंपाइलर आपको बताता है कि मतलब कौन सी एरर आपकी आ रही है, तो उसको हिंट देता है प्रोग्रामर को कि ये वाली एरर आपकी हो सकती है, इसमें इसको ठीक करें.
It creates object program only if all errors in the source code are corrected if they exist. ठीक है, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम आपका तभी क्रिएट होगा जब आपके सी कोड में सारी की सारी एरर्स रिमूव हो जाएंगी, जब आप उसको रिमूव कर लेंगे, अदरवाइज आपका ऑब्जेक्ट कोड मशीन कोड क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एरर्स को रिमूव करना पड़ेगा। जब सब की सब एरर्स रिमूव हो जाएंगी तब आपका ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट होगा। प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज हैज द एक्सटेंशन डॉट सी। ये याद रखिएगा, आप जब भी आपने कोई भी सी का कोड लिखना है, सी का प्रोग्राम लिखना है, यू हैव टू सेव द फाइल विद द डॉट सी एक्सटेंशन। जैसे आपका कोई भी कोड है, फर्स्ट आपका पहले मतलब इसके नाम में लिखा है फर्स्ट, तो फर्स्ट डॉट सी आप लिखना है। जैसे आप कोई भी नाम लिखते हैं उसका फाइल का, जैसे आप लिखते हैं अली, तो आपने क्या लिखना है, अली डॉट सी। ठीक है, अली डॉट सी इसकी एक्सटेंशन होगी। ठीक है, ये आपने लिखना है, जब सेव करेंगे आप उसको तो आप लिखेंगे अली डॉट सी। ठीक है, जो भी आप लिखेंगे पासपोर्ट के कोई भी आप लिख रहे हैं, ए पी एस डॉट सी। ठीक है, ए पी एस डॉट नाम, पहले नाम, उसके बाद आखिर में एक्सटेंशन आएगी डॉट सी। ओके, ये वाला डॉट सी। ठीक है, जो सी लैंग्वेज का कोड होता है उसकी एक्सटेंशन क्या है, डॉट सी। ओके, आफ्टर कंपाइलेशन द एक्सटेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट कोड विल बी डॉट ओबीजे। ठीक है, जब कंपाइल हो जाएगा तो उसके बाद उसकी एक्सटेंशन क्या बन जाएगी, डॉट ओबीजे। ये खुद ब खुद बनेगी, इसको आपने नहीं करना, इसको आपने नहीं छेड़ना। ठीक है, ये खुद ब खुद जब आप उसको कंपाइल करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसकी क्रिएट हो जाएगी डॉट ओबीजे। डॉट ऑब्जेक्ट मीन्स डॉट ओबीजे। तो बेटा जैसे हमने पहले बनाया था फर्स्ट डॉट सी, तो अब उसकी एक्सटेंशन क्या बनेगी, फर्स्ट डॉट ओबीजे। अब ये आपको एक बताया जा रहा है प्रोसेस कि कैसे कन्वर्ट होता है प्रोग्राम आपका ऑब्जेक्ट कोड में। तो सबसे पहले देखिए, हमारे पास होता है सोर्स प्रोग्राम, उसके बाद आपके पास होता है कंपाइलर सॉफ्टवेयर। ठीक है, कंपाइलर सॉफ्टवेयर क्या करता है, सोर्स प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है इनटू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। ठीक है, कंपाइलर ने कन्वर्ट कर दिया सोर्स को ऑब्जेक्ट में। उसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के बाद आपके पास यहाँ पे होता है लिंकर सॉफ्टवेयर। ठीक है, हमने पढ़ा ना लिंकर, तो लिंकर सॉफ्टवेयर होता है। तो लिंकर सॉफ्टवेयर क्या करता है, इट विल टेक द डेफिनेशन ऑफ द अननोन फंक्शन फ्रॉम द लाइब्रेरी, सी लाइब्रेरी। सी लाइब्रेरी से बेटा ये फंक्शन की डेफिनेशन लेते हैं। फास्ट आपने सोर्स में कुछ ऐसे फंक्शन यूज किए जो कि सी में डिफाइंड नहीं है, तो बेटा वो सी लैंग्वेज की लाइब्रेरी से फंक्शन की डेफिनेशन लेगा, तो उनको लिंक कर देगा ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के साथ। ठीक है, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के साथ लिंक कर देगा। उसके बाद आपका क्या बनता है, एंड पे आके आपका बनता है एग्जीक्यूटेबल फाइल, जिसको आप कहते हैं एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। ओके, ये आपका क्रिएट होता है लास्ट स्टेप में। ओके, दिस इज अ सिंपल प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एन एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। इस डायग्राम को अपने याद करना अच्छी तरह, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी। ठीक है, सबसे पहले सोर्स, इसके बाद कंपाइलर सॉफ्टवेयर, फिर आपके पास ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, फिर है लिंकर सॉफ्टवेयर। आफ्टर दैट वी हैव सी लाइब्रेरी फंक्शन। ठीक है, जो जिससे आपकी जो फंक्शन की डेफिनेशन को लिंक किया जाता है विद द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। उसके बाद क्या होता है, इस लिंकर सॉफ्टवेयर से आपके पास बनती है एग्जीक्यूटेबल फाइल, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम जो आपका एग्जीक्यूट होता है। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। वी हैव लिंकर। ओके, अब हम पढ़ेंगे लिंकर क्या चीज़ है। मैंने थोड़ा सा लिंकर का आपको पीछे बताया, लिंकर क्या करते हैं, तो मजीद इसको देख लेते हैं। सो सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इनटू सिंगल एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। लिंकर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है कि आपके जो ऑब्जेक्ट कोड को ट्रांसलेट करता है इनटू एग्जीक्यूटेबल फाइल। ओके, लेट्स सी द प्रीवियस डायग्राम। देखिए, लिंकर ने क्या किया, ऑब्जेक्ट कोड को ट्रांसलेट किया एग्जीक्यूटेबल फाइल में, एग्जीक्यूटेबल फाइल में विद द हेल्प ऑफ सी लाइब्रेरी। ठीक है, सी लाइब्रेरी की हेल्प से उसने डेफिनेशन की सॉरी फंक्शन की डेफिनेशन ली, उसको इसमें लिंक किया, उसके बाद ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट कर दिया इसमें एग्जीक्यूटेबल फाइल में। After that we have during translation, if it could not find definition of any function, then it assumed that the definition of is in C library। ठीक है, अगर उसको डेफिनेशन नहीं मिलती तो वो क्या करते हैं, सी लाइब्रेरी से डेफिनेशन उठा के उसके साथ लिंक कर देते हैं।
It will replace the functions in the object program with the code from the C library and then create a single executable file. ये बात आपको पहले बता चुका हूँ. Okay, after that we have loader. ठीक है, linker के बाद है loader. It is a software that loads programs into memory and executes them. ये बेटा के जो आपके ऑब्जेक्ट प्रोग्राम होते हैं उनको लोड करवाता है मेमोरी के अंदर, फिर उसको बाद में एग्जीक्यूट करवाता है. After that we have debugger. Debugger is a software that execute a program line by line. ये क्या करता है बेटा, प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन चेक करता है, लाइन बाय लाइन चेक करता है एंड एग्जामाइन द वैल्यूज, जो उसके अंदर वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर होती है उन सबको चेक करता है, फिर देखता है कोई एरर तो नहीं है उनमें. यदि एरर होती है तो फिर वो नोटिफाई करता है कि ये वाली एरर है तो उसको रिमूव करें. ठीक है, इसको रिमूव करने में हमें हेल्प करता है, हमें बताता है कौन सी एरर कहाँ पे आ गई, तो उसको रिमूव करने में ये हमारी हेल्प करता है. Okay, it helps in finding and removing errors. Okay, this was all about the environment of C language. Now we will discuss the new topic, which is programming basics. C is a popular and widely used language. ठीक है, used for creating computer programs. Okay, C is a used on the large scale as well. Okay, for creating system software like Windows applications and creating the Windows source. ठीक है, विंडो का जो पीछे सोर्स कोड होता है उसको क्रिएट करने के लिए भी आपकी सी लैंग्वेज यूज की जाती है. A large variety of application programs and mainly modern operating system are written in C. जो आपके पास मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे आपके विंडोज 7, विंडोज 8, ये आपके पास सी लैंग्वेज में डेवलप की गई है. ठीक है, इसमें बैक एंड पे सी होती है, फ्रंट एंड पे विजुअल बेसिक यूज की जाती है. ओके, सी लैंग्वेज कैरेक्टर सेट. सी लैंग्वेज का कैरेक्टर सेट किस में बेटा तीन चीज़ें होती हैं. पहली आपके पास है लेटर्स. ठीक है, लेटर्स में हम उसके बाद बेटा आपके पास डिजिट्स भी हैं. ठीक है, वो हम देखेंगे बाद में. तो लेटर्स, फॉलोइंग सेट ऑफ लेटर्स आर यूज टू फॉर्म स्टैंडर्ड प्रोग्राम. ठीक है, ये लेटर्स आपके यूज किए जाते हैं टू फॉर्म अ स्टैंडर्ड प्रोग्राम. उसमें क्या है, ए टू जी इन कैपिटल लेटर्स. ठीक है, कैपिटल ए टू जी लेटर्स में आपके पास क्या है, कैपिटल ए टू जी. उसके बाद क्या है, स्मॉल ए टू जी. ठीक है, स्मॉल लेटर्स में जो ए टू जी है, ए से लेकर जी तक अल्फ़ाबेट्स सॉरी. ठीक है, कैपिटल में भी और स्मॉल में भी, ये लेटर्स में. उसके बाद है इन सी प्रोग्रामिंग स्मॉल लेटर्स एंड कैपिटल लेटर्स आर डिस्टिंक्ट. मतलब क्या कि स्मॉल लेटर का मतलब अलग है और कैपिटल लेटर का मतलब अलग है. तो वजह क्या है कि इनका स्मॉल लेटर का और कैपिटल लेटर का जो मशीन कोड है वो डिफरेंट है. ठीक है, इनके पीछे जो मशीन कोड जनरेट होता है वो डिफरेंट कोड जनरेट होता है. मतलब कि स्मॉल ए का डिफरेंट कोड होगा, स्मॉल और कैपिटल ए का कोड डिफरेंट होगा. स्मॉल ए के लिए 67 होता है और कैपिटल ए के लिए 92 होता है. ठीक है, तो हम इसको आगे डिस्कस करेंगे मजीद ये कैसे होता है. तो अब देखें कि आपके पास कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का मीनिंग की लैंग्वेज में डिफरेंट है. उसके बाद इसमें होता है डिजिट्स. ठीक है, कैरेक्टर सेट में तीन चीज़ें मैंने आपको बताई थी. पहली लेटर्स, सेकंड से डिजिट्स. तो सी लैंग्वेज कंप्राइज ऑफ फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर्स टू एसोसिएट द लेटर्स. ठीक है, लेटर्स के साथ साथ इसमें ये नंबर्स भी होते हैं जिसको हम कहते हैं 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स होते हैं, उनका कम्बिनेशन. ठीक है, 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स. ठीक है, इन सबका कम्बिनेशन ये सारे सी लैंग्वेज का पार्ट है, सी लैंग्वेज कैरेक्टर सेट का पार्ट है अलॉन्ग विद द लेटर्स. लेटर के साथ साथ डिजिट्स भी इसका पार्ट है. थर्ड में बेटा हमारे पास होता है इसमें स्पेशल कैरेक्टर्स. ठीक है, पहले हमने पढ़ा लेटर्स, डिजिट्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स. तो स्पेशल कैरेक्टर्स में बेटा हम देखते हैं क्या कौन से कैरेक्टर्स हैं आपके पास. सी लैंग्वेज कंटेन्स फॉलोइंग स्पेशल कैरेक्टर्स इन एसोसिएशन विद लेटर्स एंड डिजिट्स. ठीक है, लेटर एंड डिजिट साथ यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर्स भी होते हैं कुछ, तो वो देखते हैं हमारे पास. ये आपके पास सम ऑफ द स्पेशल कैरेक्टर्स आर देयर. ये देखें, एक्सक्लेमेशन मार्क, नंबर साइन, डॉलर साइन, परसेंटेज साइन, कैरेट. ओके, कैरेट इसको हम कहते हैं पावर सिंबल. उसके बाद है एम परसेंट साइन, इसको हम एम परसेंट पढ़ते हैं सी लैंग्वेज में, एम परसेंट. ठीक है, इसको इंग्लिश में तो हम पढ़ते हैं एंड, तो इसको सी लैंग्वेज में पढ़ते हैं हम एम परसेंट, एम परसेंट. ओके, इसके बाद ये देखें एस्टेरिक. एस्टेरिक हम इसको करते हैं, इसको ये मल्टीप्लाई के लिए यूज किया जाता है. इसके बाद लेफ्ट. ठीक है, लेफ्ट क्या है, कहते हैं
पैरेंथेसिस, लेफ्ट उसके बाद ये क्या है राइट पैरेंथेसिस, उसके बाद क्या अंडरस्कोर, ठीक है, इसके बाद प्लस साइन और वर्टिकल बार, बैक ये हमारे पास होती है बैक स्लैश, ठीक है, इसको कहते हैं जो पीछे स्टार्ट होती है इसको कहते हैं बैक स्लैश, एपोस्ट्रोफी, फिर माइनस साइन, इक्वल टू साइन, लेफ्ट लेफ्ट ब्रेस, राइट ब्रेस, लेफ्ट ब्रैकेट, ठीक है, ये बड़ी ब्रैकेट जिसको कहते हैं लेफ्ट ब्रैकेट, राइट ब्रैकेट, फिर कोलन एंड देन बेटा कोटेशन मार्क यूज किए जाते हैं, सेमी कोलन, उसके बाद ओपनिंग सिंगल ब्रैकेट, ठीक है, सिंगल ब्रैकेट की ओपनिंग, फिर क्लोजिंग सिंगल ब्रैकेट, एंगल ब्रैकेट कहते हैं इसको, सिंगल नहीं कहते हैं, एंगल ब्रैकेट, ओके, फिर क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट, फिर इसके बाद है क्वेश्चन मार्क, कॉमा, पीरियड, फुल स्टॉप हम कहते हैं सी लैंग्वेज में पीरियड, ठीक है, ये तीन चार चीजें हैं बेटा याद करने वाली, इसको कहते हैं स्लैश, इसको हम फॉरवर्ड स्लैश भी कहते हैं, इसको सिंपल स्लैश भी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज ये याद करने वाली है पीरियड, उसके बाद एम्परसेंड साइन, उसके बाद है कैरेट, ठीक है, ये इसके बाद है टलाइट, टलाइट इसको कहते हैं, ठीक है, ये तीन चार चीजें इसमें याद करने वाली हैं, इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद कर लीजिएगा आप, ठीक है, एम्परसेंड साइन, कैरेट, उसके बाद एस्टेरिक भी याद कर लें, इसके बाद क्या है पीरियड, ये फुल स्टॉप को क्या कहते हैं पीरियड, बाकी सब तो आपने पता ही आपको क्या चीजें होती है, बाकी तीन चार चीजें आपको नहीं पता होंगी तो इनको आप देख लीजिएगा, ओके। इसके बाद बेटा हमारे पास है रिजर्व्ड वर्ड्स, ठीक है, रिजर्व्ड वर्ड देखते हैं हम क्या होते हैं सी लैंग्वेज में, सो द वर्ड दैट आर पार्ट ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, जो ऐसे वर्ड जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पार्ट है एंड हैव स्पेशल पर्पज इन कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर कॉल्ड रिजर्व्ड वर्ड्स और कीवर्ड्स, इनको हम रिजर्व वर्ड्स कहते हैं या फिर कीवर्ड्स भी कहते हैं साथ में। रिजर्व वर्ड्स हैव प्री डिफाइंड यूज, इनका स्पेशल यूज है, इसके अलावा ये किसी पर्पज के लिए यूज नहीं किए जा सकते। तो रिजर्व वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एनी अदर पर्पज, किसी और काम के लिए यूज नहीं किए जा सकते अपने स्पेशल काम के अलावा, जस्ट इनका जो काम इनको असाइन कर दिया गया है उसी काम के लिए यूज होंगे, उसके अलावा किसी काम के लिए यूज नहीं हो सकता है। ओके, रिजर्व वर्ड्स आर ऑलवेज रिटन इन लोअर केस, याद रखिएगा कि रिजर्व वर्ड्स हमेशा लोअर केस में लिखे जाते हैं, स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं, इनको कभी भी कैपिटल लेटर से नहीं लिखा जाता। कुछ रिजर्व वर्ड्स हैं स्पेशल जिनको कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे आगे। ओके, देयर आर 32 वर्ड्स डिफाइंड एज रिजर्व वर्ड्स इन द सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज में 32 वर्ड्स हैं जिनको आप कहते हैं ये रिजर्व वर्ड्स, ठीक। मोस्टली जो सी लैंग्वेज के जो रिजर्व वर्ड्स हैं वो आपके पास सारे के सारे स्मॉल लेटर्स में, सारे के सारे स्मॉल लेटर्स में, ठीक है। अब इसमें देखें आपके पास लिस्ट ऑफ रिजर्व वर्ड्स, ये आपके पास है 32 लेटर 32 वर्ड्स हैं, ठीक है, तो 32 आपके पास ये 1 2 3 4 5 6 7 8 4 32, तो ये सारे आपके पास क्या है रिजर्व वर्ड्स हैं, इनको आप किसी और पर्पज के लिए यूज नहीं कर सकते, ठीक है। रिजर्व वर्ड्स मतलब कि रिजर्व कर दिए गए हैं इसकी लाइब्रेरी के लिए, तो इनका वही फंक्शन होगा जो उसके लाइब्रेरी में डिफाइंड है, इसको आप किसी और पर्पज के लिए किसी और फंक्शन के लिए यूज नहीं कर सकते। कि इन सबको आप देख लीजिए कौन कौन से वर्ड हैं ये मोस्टली इसमें ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं बेटा कि ये रिजर्व वर्ड है कि नहीं है, ये मतलब कोई भी आपके पास वर्ड आ जाएगा, जैसे एप्पल लिखा होगा एप्पल, तो आपसे पूछेंगे एप्पल रिजर्व वर्ड है कि नहीं है, आपका लिखा होगा डबल, तो डबल रिजर्व वर्ड है कि नहीं, तो आपने मैच करना है यहाँ से कि डबल इसमें आ रहा है तो डबल इसमें आ रहा है, तो डबल आपका रिजर्व वर्ड है, ठीक है। अब इसमें ऑटो, ब्रेक, केस, चार, कांस्टेंट, कंटिन्यू, ये सारे क्या हैं आपके पास रिजर्व वर्ड्स हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए साइज ऑफ, साइन, शॉर्ट, रिटर्न, रजिस्टर, ये सारे क्या हैं रिजर्व वर्ड्स हैं, इनको आप किसी और लैंग्वेज किसी और पर्पज के लिए यूज नहीं कर सकते, तो आपने इनको याद करना है रिजर्व वर्ड्स कौन कौन से हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव बेटा हेडर फाइल्स। हेडर फाइल्स आपके पास क्या होती हैं, सी लैंग्वेज कंटेन्स अ नंबर ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस इन द लाइब्रेरी फाइल दैट परफॉर्म वेरियस टास्क इन अ सी प्रोग्राम। सी लैंग्वेज में आपके पास डिफरेंट फाइल्स होती हैं जो कि लाइब्रेरी में जो कि डिफरेंट टास्क डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, जिसको आप कहते हैं हेडर फाइल्स। So these tasks include all input output operation and all math operation। इन टास्क में क्या है जितने भी आपके पास इनपुट ऑपरेशन आउटपुट ऑपरेशन जो हम मतलब वेरिएबल इनपुट ले रहे होते हैं यूजर से, जो हम आउटपुट दे रहे होते हैं उसकी स्क्रीन पे, so those functions are included in the header files। Library files contains header files and each header file contains a set of functions, ठीक है। लाइब्रेरी की फाइल्स में क्या होती हैं हेडर फाइल्स होती हैं, हेडर फाइल्स में क्या होते हैं सेट ऑफ फंक्शन। Some header files and their functions are listed below। कुछ header फाइल हम डिस्कस कर रहे हैं, बाकी आपको देख लीजिएगा। header files first of all stdio.h,
फंक्शन इसका क्या होता है, ये printf और scanf और बहुत सारे फंक्शन और के लिए भी इस्तेमाल होती है। ठीक है, printf और scanf इसके दो मेन फंक्शन है जिसके लिए इस्तेमाल होती है stdio डॉट h। इसके बाद है हेडर फाइल conio.h, conio.h इसको कहते हैं। conio.h इसके फंक्शन क्या है, क्लियर स्क्रीन, गेट ch e, गेट चार भी इसका फंक्शन है बेटा। ठीक है, तो हम इसको आगे डिस्कस करेंगे, मजीद इसके फंक्शन हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन अब बेसिक फंक्शन है क्लियर स्क्रीन, clr ser, उसके बाद गेट ch होता है गेट करेक्टर। ठीक है, ये गेट ch e होता है गेट करेक्टर इको, गेट करेक्टर इको, इसको हम डिस्कस करेंगे। ये सब चीजें क्या है, ये क्या काम करते हैं, फिलहाल आप इनके नाम याद कर लें। क्लियर स्क्रीन, गेट करेक्टर इको, गेट चे भी कहते हैं इनको। सिंपल ये वाला नाम याद करने, आपने पूरे नाम लिखते होते हैं इसके साथ, पूरे नाम नहीं लिखते, जस्ट आप यही लिखते होते हैं, कीवर्ड्स हैं ये स्पेशल। ओके, इसके बाद देखिए हेडर फाइल्स आपके पास मैथ डॉट एच। ठीक है, दो पढ़ी, हम तीसरी पढ़ रहे हैं मैथ डॉट एच। फंक्शन इसका क्या है, स्क्वायर रूट, पावर, कॉस्ट, जिसको कॉस्ट कहते हैं, उसके बाद tan भी इसका होता है, कॉट भी होता है। ठीक है, डिफरेंट फंक्शन आ दिया। तो ये कुछ बेटा हेडर फाइल्स थे, इनके फंक्शन भी आपको बता दिए। तो अब क्या है, व्हेन अ सोर्स प्रोग्राम इज ट्रांसलेटेड इनटू एग्जीक्यूटेबल फाइल, जब आपका सोर्स प्रोग्राम आपका ट्रांसलेट किया जाता है एग्जीक्यूटेबल फाइल में, अ कॉपी ऑफ कोड ऑफ फंक्शन इज पेस्टेड इन अ सोर्स कोड। ठीक है, सोर्स कोड में उस फंक्शन की कॉपी पेस्ट कर दी जाती है बाय द लिंकर, लिंकर काम करता है ये, फ्रॉम द हेडर फाइल बिफोर क्रिएटिंग अ एग्जीक्यूटेबल फाइल। एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाने से पहले उसकी डेफिनेशन, जब वो देखता है कि ये फंक्शन आपके इसमें डिफाइंड नहीं है, तो बेटा लिंकर क्या करता है, उसकी डेफिनेशन लाइब्रेरी से उठा के उस कोड में पेस्ट कर देता है। ये आपको एग्जांपल दी गई है। ठीक है, ये पासवर्ड आपका सोर्स कोड है। ठीक है, ये आपका क्या है, सोर्स कोड। अब ये क्या है आपके पास, लाइब्रेरी। ठीक है, सी की लाइब्रेरी, सेट ऑफ फंक्शन दैट आर इंक्लूडेड इन द स्टूडियो डॉट एच। ठीक है, स्टूडियो डॉट एच में जो लाइब्रेरी है उसमें आपके पास फंक्शन की डेफिनेशन है, तो उस डेफिनेशन को क्या किया जाएगा, यहाँ से उठा के इसमें पेस्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, ये आपको इस एरो से दिखाया जा रहा है कि इसमें यहाँ से उठा के डेफिनेशन में सोर्स कोड में पेस्ट कर दिए। ओके, आफ्टर दैट वी हैव स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम। ठीक है, सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम इज द नेक्स्ट टॉपिक। तो स्ट्रक्चर में देख लेते हैं, द फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू विच प्रोग्राम इज रिटन इज कॉल्ड स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोग्राम। ओके, द इट इज अ फॉर्मेट, स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, इट इज अ फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू विच एनी प्रोग्राम इज रिटन इज कॉल्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोग्राम। सो स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम, द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम। इसमें सबसे पहले क्या होता है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जिसको हम हैश सिंबल भी कहते हैं, उसके साथ बेटा इंक्लूड होते हैं, हैश इंक्लूड। ठीक है, हैश इंक्लूड, ठीक है, हैश इंक्लूड डिफाइन भी होते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। तो हम इसको आगे देखेंगे ये क्या चीज़ होती है, फिलहाल आप स्ट्रक्चर देखें। इसके बाद है ग्लोबल डिक्लेरेशन। ठीक है, ग्लोबल डिक्लेरेशन आपके पास होती है, जो वेरिएबल ग्लोबली डिक्लेयर किया जाता है फॉर द होल प्रोग्राम, उसको कहते हैं ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, ग्लोबल मीन्स पूरे प्रोग्राम के लिए एक वेरिएबल की डिक्लेरेशन, उसे कहते हैं ग्लोबल डिक्लेरेशन। तो वो यहाँ की जाती है। इसके बाद आपके पास आता है मेन फंक्शन। ठीक है, मेन फंक्शन आपके पास, मेन फंक्शन भी आप कह सकते हैं ग्लोबली डिक्लेयर्ड फंक्शन है, जिसका हम यूज करते हैं मेन फंक्शन आपके सी प्रोग्राम में। उसके बाद यहाँ पे आती है लेफ्ट ब्रेस। ठीक है, लेफ्ट ब्रेस। इसके बाद है लोकल डिक्लेरेशन। यहाँ पे क्या डिक्लेयर किया जाता है, लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किए जाते हैं आपके, जो सी प्रोग्राम के स्ट्रक्चर के अंदर यूज किए जाते हैं, जो एक स्टेटमेंट एक बॉडी के अंदर यूज किए जाते हैं। ओके, स्टेटमेंट्स फिर यहाँ पे आती हैं, फिर आपके पास ये राइट ब्रेस है। अब इन दोनों को हम क्या नाम देते हैं, इन दोनों को हम कहते हैं बॉडी ऑफ अ मेन फंक्शन। यहाँ की क्या है, मेन फंक्शन की बॉडी। मेन फंक्शन यहाँ स्टार्ट होगा, यहाँ पर मेन फंक्शन आपका एंड हो गया। अंडरस्टूड। ठीक है, मेन फंक्शन यहाँ स्टार्ट हुआ ना, यहाँ से स्टार्ट हुआ आपके पास इस ब्रेस से, उसके बाद इस ब्रेस पे ये एंड हो गया। ओके, आफ्टर दैट बेटा वी हैव यूज सम यूजर डिफाइंड फंक्शन एज वेल। ठीक है, यहाँ पे यूजर डिफाइंड फंक्शन भी होते हैं, जो यूजर खुद अपनी तरफ से डिफाइन करते हैं, फिर उनकी बेटा डेफिनेशन भी खुद ही देते हैं वो यहाँ पे, क्योंकि लाइब्रेरी में उसकी डेफिनेशन नहीं होती। ओके, तो फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3 में यहाँ पे जितने मर्जी फंक्शन चाहें आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो इन सबको आप क्या कहते हैं, ये आपके पास क्या है, ऑप्शनल टू यूजर। मतलब ये यूजर चाहे तो दे, चाहे तो ना दे, उसकी मर्जी है। अगर उसने प्रोग्राम में यूज़ किए तो वो उसको फंक्शन को डिक्लेयर करेगा यहाँ पे, उसके बाद वो यूज़ होंगे, अदरवाइज दे विल नॉट बी यूज्ड।
Okay, this was the structure of a C program. सबसे पहले क्या है, preprocessor directive. After that we have global declaration of variables. Then main function. After that left brace. फिर local declaration. फिर statements. फिर right brace. इन दोनों क्या कहते हैं, body of main function. ये क्या है, body of main function. After that we have some user defined function as well. Okay, ये क्या होते हैं, आपके पास optional होते हैं यूजर के लिए. यूजर चाहे तो उनको दे, चाहे तो उनको omit कर दे, emit कर दे, तो इनको ना दे. Okay, to introduce a structure of C program, consider a simple प्रोग्राम टू प्रिंट द मैसेज. ठीक है, एक सिंपल सा हम प्रोग्राम देख रहे हैं जो हमारे पास एक मैसेज प्रिंट करेगा. तो उसको हम चेक कर लेते हैं प्रोग्राम को. इंटरेस्टिंग. सो ये आपके पास सी का प्रोग्राम ओपन हो गया. ठीक है, अब इसमें देखिए मैंने सिंपल सा रखा है इसको, कोई मैं आपकी बुक वाला इंक्लूड किया है. तो इसमें देखें आपके पास क्या है, हैश इंक्लूड stdio डॉट एच हैश इंक्लूड किया है मेरे पास. प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, और ये स्टूडियो डॉट एच क्या है, हेडर फाइल है. ये हैश इंक्लूड किया है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव. ये क्या है आपके पास, कोनी डॉट एच क्या है, हेडर फाइल है जिसमें डेफिनेशन शामिल की गई है. ठीक है, अब stdio डॉट एच में क्या कुछ डेफिनेशन होती थी, प्रिंट एफ की डेफिनेशन इसमें है. कोनियो डॉट एच में क्या है, गेट सी एच की डेफिनेशन कोनियो डॉट एच में है. ठीक है, इसलिए मैंने जहाँ पे गेट सी एच यूज किया मुझे साथ में ये शामिल करना पड़ा. जब मैंने प्रिंट एफ यूज किया मुझे साथ में ये वाली हेडर फाइल शामिल करनी पड़ी, क्योंकि प्रिंट एफ सी को नहीं पता प्रिंट एफ क्या है. तो बेटा इसकी डेफिनेशन के लिए हमें क्या यूज करना पड़ा, stdio डॉट एच. अब गेट सी एच का नहीं पता गेट सी एच क्या है, तो इसके लिए मुझे यूज करना पड़ा कोनियो डॉट एच, जो कि हेडर फाइल है जिसमें इसकी डेफिनेशन है. उसके बाद यहाँ पे क्या है, ये आपके पास ग्लोबल डिक्लेरेशन मेन फंक्शन वाइड मेन वाइड. ठीक है, वाइड मतलब कि ये हम डिस्कस करेंगे इस वाइड का क्या मतलब है, इस वाइड का क्या मतलब, आगे डिस्कस करेंगे मजीद इसको. तो फिलहाल हम इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं. तो चीज़ याद रखिएगा स्टूडेंट्स के इस कोड को कंपाइल करने के लिए आपके पास शॉर्टकट की है F9. कंपाइल के लिए शॉर्टकट की क्या है, F9, और रन के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, F10. तो मैं सबसे पहले F9 प्रेस करके देखता हूँ कि F9 से क्या हो रहा है. ये F9 मैंने प्रिंट की. ठीक है, तो अब यहाँ पे कह रहा है कि मेन मस्ट रिटर्न इंट. तो ये मोस्टली एरर देता है, तो इसको हम एकदम स्किप कर देते हैं. ठीक है, तो मैं अब इसको F10 प्रेस करके एग्जीक्यूट करवाना चाह रहा हूँ, देखते हैं क्या करते हैं. तो अब देखें इसके पास ये आंसर क्या है, आई लव पाकिस्तान. जो भी स्टेटमेंट आप इस प्रिंट एफ के अंदर लिखेंगे वो आपके पास आउटपुट में आएगी. ठीक है, आई लव पाकिस्तान. तो आपके पास ये आउटपुट में आ गया और आई लव पाकिस्तान. तो दैट्स ऑल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ द सी प्रोग्राम. दिस इज सिंपल. तो हम इसको मजीद इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आगे फर्दर. फिलहाल आप इसको सिंपल रखिए. चलो जी स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक एंड हो गया. इंशाल्लाह हम नेक्स्ट कवर करेंगे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को. ठीक है, इसको हम डिटेल के साथ देखेंगे ये क्या चीज़ होती है, ये क्या काम करते हैं, क्या फंक्शन अंजाम देते हैं. उसके बाद हम मेन फंक्शन देखेंगे, फिर इसके बाद बॉडी ऑफ फंक्शन मेन फंक्शन देखेंगे. फिर लास्ट में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे ग्लोबल एंड लोकल डिक्लेरेशन ऑफ द वेरिएबल्स. सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस टॉपिक. सी यू इंशाल्लाह. अल्लाह हाफिज़ बेटा. थैंक यू वेरी मच.